Hi friends. Till now, we had started chapter number 2, in which we have completed first part, that is units. Now we have after that we started the second part, that is measurement. In measurement, in part of measurement, we studied the measurement of time and mass. Today, let's study measurement of length. What is length actually? So length is distance between two points. How do we measure it? So our common sense says that in geometry box there is a scale. Now we use that scale for measurement of length. Normally we use that scale in measurement of length. You can have a bigger scale also, that is foot ruler. Okay, how much does it measure? So the minimum distance it can measure is called least count. Minimum distance a device can measure is called least count. In short we call it as LC. Now least count, how much is that of scale? How much minimum does the scale measure? स्केल ले लो या फुट रूलर ले लो, कितना मिनिमम मेजर करेगा? तो ध्यान से देखें तो 1 सेंटीमीटर का भी 10वां पार्ट, 10th पार्ट ऑफ सेंटीमीटर, then that is called 1 millimeter. So scale can measure up to 1 millimeter. Okay, that is around 10 raised to minus 3 meter. Milli यानी minus 3. So 10 raised to minus 3 meter is the minimum value a scale or a foot ruler can measure. If you want to measure distance less than this 1 millimeter, then we use a device, an instrument called वर्नियर कैलिपर्स. आपको लगेगा ये क्या अजीब सा नाम है, डोंट वरी, प्रैक्टिकल्स में पहले दिन याद आएगा. वर्नियर कैलिपर्स इज अ डिवाइस which can measure distance of the order of 0.1 millimeter. यानी मिलीमीटर का भी 10वां पार्ट ये मेजर कर सकता है, यानी ये हो जाएगा रफली 10 raised to minus 4 मीटर. मोर एक्यूरेसी से. फिर उससे भी कम डिस्टेंस मेजर करना हो तो फिर एक डिवाइस आता है कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू. माइक्रोमीटर स्क्रू, और इट्स आल्सो कॉल्ड, certain place they will refer it as screw gauge, and this micrometer screw can measure up to 0.01 millimeter, यानी still 10 times less than vernier calipers, and that comes out to it somewhere around 10 raised to minus 5 meter. There is another device also, spherometer, which also has the same least count, 0.01 millimeter, that is 10 raised to minus 5 meter. So to measure smaller distance, 10 raised to minus 3 meter, we use normal scale. 10 raised to minus 4, we use vernier calipers. 10 raised to minus 5, we use screw gauge. You'll be studying the use of vernier calipers and micrometer screw in your practicals. इससे भी कम measure करना हो तो then we go for microscope. माइक्रोस्कोप का काम क्या है? द नेम स्कोप, द वर्ड स्कोप मीन्स फॉर व्यूइंग. माइक्रो मीन्स, माइक्रो याद होगा प्रीफिक्सेस में था, इट वाज 10 raised to minus 6. सो माइक्रो ने 10 raised to minus 6 के ऑर्डर में अगर मेजर करना हो, स्टडी करना हो, तो वी यूज माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप का एक्चुअल नाम ही ऐसा ही है, माइक्रो ने 10 raised to minus 6 के ऑर्डर का देखो एज माइक्रोस्कोप. नॉर्मली वी यूज एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में लाइट इज यूज्ड, ऑप्टिक वर्ड इज कनेक्टेड टू लाइट, तो उसमें लाइट को यूज करते हैं. आप बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में, यस आपने 10th में साइंस के प्रैक्टिकल्स में शायद इसको देखा होगा. एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप वर्क्स ऑन लाइट, एंड लाइट के बारे में हमें मालूम है लाइट का वेवलेंथ समवेयर अराउंड 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. ये रेंज है लाइट के वेवलेंथ का, 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम. ये एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 raised to minus 10, 10 raised to minus 10 एंड फिर प्लस 3, तो दैट गोज in the least count of the order of 10 raised to minus 7 meter. इससे भी कम, बराबर है. तो it can go up to 10 raised to minus 1 meter and 10 microscope, 10 micrometer जितना हो गया. तो this goes still more smaller. इससे भी कम लेवल पे जाना हो तो नेक्स्ट लेवल कम्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? वो इलेक्ट्रॉन का यूज करता है. इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन का वेव फॉर्म में यूज करता है. Electron is a particle, but it is used in its wave property is used here in electron microscope, and that electron as a wave can have wavelength of the order of 0.1 angstrom. हिसाब लगाए तो 10 raised to minus 10 minus 1 यानी 10 raised to minus 11 मीटर की डेप्थ तक हम लोग जा सकते हैं. इतना thickness of this much small can be measured using electron microscope. So our requirement of measuring length at a smaller level can go up to 10 raised to minus 11 meter. इसके अलावा
आपने शायद नाम भी सुना होगा, टनलिंग माइक्रोस्कोप। अब ये टनल माइक्रोस्कोप का आपने नाम कहाँ सुना था? तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 इन साइंस 10th स्टैंडर्ड नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो नैनो टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ के लेवल पे ये इनका यूज होता है, टनलिंग माइक्रोस्कोप। एंड दिस टनलिंग माइक्रोस्कोप has a least count of around 10⁻⁻10 meter and up to 1 angstrom. तो टनलिंग माइक्रोस्कोप इज द सेम लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिर इसमें दोनों में फर्क है थोड़ा बहुत, पर हम लोग उस टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा रहे। आवर पर्पस इज टू सी हाउ मच स्मॉल लिंक कैन बी मेजर। तो ये स्मॉल लिंक मेजर करने का अलग अलग डिवाइसेस हो गए। We can go up to the level of 10⁻11 meter. There is one more method of studying length of a very smaller line, and that's called monomolecular layer method. This is a method of measuring very small length. Monomolecular layer method. अब ये monomolecular layer method क्या है? Scientists normally use this method to find thickness of molecules. नाम ही बोल रहे हैं ना, मोनोमोलिकुलर, यानी मॉलिक्यूल की थिकनेस के का स्टडी करने के लिए मेथड का यूज होता है। ये मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड है क्या चीज? व्हाट दे डू इज दे टेक अ सब्सटेंस जिसके मॉलिक्यूल का थिकनेस सही है, उस सब्सटेंस को किसी एक सरफेस पे स्प्रेड किया जाता है। इट इज स्प्रेड ऑन अ सरफेस लाइक दिस, एंड स्प्रेड कहाँ तक करते हैं? जहां तक वो सिंगल लेयर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाए। मोनो यानी सिंगल, मॉलिक्यूल का लेयर बने, ऐसा रखते हैं। यानी सिचुएशन क्या होगा, स्प्रेड करते करते मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाएंगे एंड ये सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर होगा। कभी भी ओवरलैपिंग या एक के ऊपर दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ओके, इट इज जस्ट अ सिंगल लेयर ओनली। एंड फिर इसका थिकनेस मेजर करो, ये मॉलिक्यूल का थिकनेस आ गया ना। मॉलिक्यूलर थिकनेस आर नॉर्मली इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर। तो ये 10⁻10 मीटर का मेजरमेंट हो गया। ये हमारे लिए कोई, ये साइंटिस्ट आर यूजिंग दिस मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड। यू विल बी फैसिनेटेड, पता नहीं ऐसे कैसे करते होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड एंड डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं इसको। तुम बोलोगे ऐसा कैसे? हम लोग आर वी यूजिंग द साइंटिफिक मेथड्स, मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड? यस डेफिनेटली, यू हैव विटनेस इट, आई कैन गारंटी यू। कहाँ पे? ऐसा कैसे हो गया सर? हमने तो कभी साइंटिस्ट के साथ काम नहीं किया, कभी गए नहीं लेबोरेटरी में, तो हाउ कैन वी नो? अरे यार, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। आपके घर में उत्तरायण पे चिक्की तो बनती होगी। माँ हमेशा उत्तरायण पे अगले दिन रात को चिक्की बनाती है। सिंग की हो सकती है, चने की हो सकती है, या फिर तिल की चिक्की हो सकती है। व्हाट इज दैट? दैट इज यूज ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड। बोलो सर मजाक करते हो यार आप तो। नहीं, इट्स नॉट सो। जरा याद करें वो मेथड क्या था। माँ कढ़ाई में गुड़ लेती है, पहले उसको गर्म करती है तो गुड़ लिक्विड टाइप हो जाता है, बराबर? ये तो देखा होगा। अगर आपने अभी तक ये देखा नहीं है तो इस बार अगली उत्तरायण को माँ के साथ में बैठना, या फिर माँ को स्पेशल डिमांड करो कि चिक्की बना के दे, आप साथ में बैठ जाओ, आपको पता लग जाएगा ये मेथड कौन सी है, साइंटिस्ट क्या नया करते हैं। हमारी माँ हमारे साइंटिस्ट से भी ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, गुड़ को गर्म किया, फिर उस गर्म गुड़ में व्हेन इट बिकम्स क्वाइट लिक्विड टाइप, उसमें फिर सिंग, चना या तिल जो भी डालना डाल देते हैं। थोड़ी देर गर्म किया, लिक्विड फॉर्म में ही है, तब तक बाद में प्लेटफॉर्म पे तेल बिछा देंगे, तेल लगा देंगे, एंड फिर उसके ऊपर उड़ेल देते हैं इसे। एंड फिर आपको बोलते हैं लो ये तू एक बाउल पकड़, और वो भी एक बाउल लेके उसको फैलाना शुरू करते हैं। कहाँ तक फैलाते हैं? जब तक पतले में पतला हो सके, एंड गरम गरम हो तब तक फैलेगा। ठंडा हो गया बाद में फैलना बंद, थोड़ा भी ठंडा हो गया फैलना बंद, फिर आपको बोलेंगे फटाफट शुरू हो जाओ। एंड व्हाट यू मेक इज मोनो सिंग लेयर, या मोनो चना लेयर, या मोनो तिल लेयर। एंड जितना पतला बनता है उतना बेस्ट होता है। जैसे ही जीप पे रखो गायब हो जाए तो माँ की बेस्ट चिक्की। दैट इज द मेथड ऑफ मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड। उसका थिकनेस मेजर करोगे तो थिकनेस आ जाएगा तिल का, चने का या सिंग का। So that is the monomolecular layer method of measuring small thicknesses of molecules. अच्छा, ये तो हुआ स्मॉलर लेवल, यानी नॉर्मली हम जो ज्योमेट्री में स्केल यूज करते हैं 1 मिलीमीटर का, उससे काफी कम लेवल तक गए। सर बड़े डिस्टेंस मेजर करना हो तो, बड़े लेंथ मेजर करना हो तो कोई बात नहीं। देखो स्केल से ज्यादा बड़ा क्या है? फुट रूलर। स्केल कैन मेजर अप टू 15 सेंटीमीटर, फुट रूलर कैन गो अप टू 30 सेंटीमीटर। 1 फुट 12 इंच यानी कि 30 सेंटीमीटर। तो फुट रूलर हो गया। उसके बाद फुट रूलर के बाद क्या?
तो बोले मेजरिंग टेप, टेलर की जो टेप आती है वो 6 फुट तक जाती है, क्योंकि बंदे की साइज 6 फुट से ज़्यादा टेलर नॉर्मली नहीं गिनता है। तो टेलर की टेप आ गई, दैट टेप ऑफ टेलर कैन मेजर अप टू 6 फुट, यानी कि अराउंड 180 मीटर, 2 मीटर तक। फिर नेक्स्ट उसके बाद ऊपर लेवल पे जाओ तो प्लम्बर की टेप आती है जो 15-20 फुट तक चलती है। उसे वो दीवारें बनानी होती है तो उसके लिए हाइट मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करता है वो। प्लम्बर की टेप आ गई, उससे भी ज्यादा बड़ी। तो इतनी बड़ी साइज की टेप देखोगे सिविल इंजीनियर्स के पास में, बड़े बड़ी जमीनों को मेजर करने के लिए एक एंड पकड़ा देते हैं मजदूर को, दौड़ बोले आगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो भागते जाता है भागते जाता है भागते जाता है, एक सब बिगड़ टेप, उससे भी ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना हो तो कोई बात नहीं, अपने गाड़ी अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का माइलोमीटर का यूज करें। उसके अंदर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, मतलब डिस्टेंस मेजर होता है ना माइलोमीटर के साथ में, बराबर है। तो उसके अंदर डिस्टेंस आ जाएगा जितना दूर चाहिए। अच्छा सर ये तो अर्थ पे हो गया, मून का डिस्टेंस ढूंढना हो तो, जुपिटर का डिस्टेंस ढूंढना हो तो, यानी ऐसे लार्ज डिस्टेंस ढूंढने हो तो मेक यूज ऑफ पैरेलैक्स मेथड। तो नेक्स्ट वी विल गो ओवर टू हाउ सी द मेथड, पैरेलैक्स मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ लार्ज ऑर्डर, यानी कि मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, या फिर साइज ऑफ अ प्लैनेट, यहाँ से बैठे बैठे अगर मेजर करना हो तो मेक यूज ऑफ दिस पैरेलैक्स मेथड। तो आवर नेक्स्ट टारगेट इज measuring the seeing the method of parallax. So now we go over to method called parallax method. ये method क्या चीज है? It is a method of measuring large distances. Method of measuring large distance. ये तो सबसे पहले application इसका लेते हैं to find distance of a planet from Earth. अर्थ से प्लैनेट का डिस्टेंस ढूंढने के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं। नाउ सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज अ प्लैनेट हुज डिस्टेंस वी वांट टू मेजर। ओके, नाउ अर्थ से इस प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करना हो तो अर्थ के दो वर्टिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं, सॉरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं। अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लिए, लेट्स से ए एंड बी। इधर से प्लैनेट का कोई एक पॉइंट पकड़ते हैं, लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो एंगल हो गया इसको बोलेंगे थीटा एंड दिस कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल। पैरेलैक्स एंगल क्या किया, अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स लिए, यानी अर्थ का डायमीटर छोटा भी बोल दिया इसको, अर्थ का डायमीटर छोटा भी, तो ये डायमीटर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से पॉइंट प्लैनेट पे कोई एक पॉइंट फिक्स कर लिया एंड ये एंगल थीटा आ गया। नाउ व्हाट दिस इज, यहां पे अगर ध्यान, अच्छा हमें क्या ढूंढना है, वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लैनेट, ये डिस्टेंस मेजर करना है, यानी वैसे बोला जाए तो वी वांट दिस वन। नाउ मेथड क्या रहेगा, तो हमने ज्योमेट्री में सीखा हुआ है कि सपोज देयर इज अ सर्कल जिसका रेडियस आर है, इस सर्कल पे हम लोग एक आर्क ले लेते हैं, लेट्स से ए बी। ये 9th या 10th में सीखा हुआ फंडामेंटल है कि सर्कल पे एक आर्क ले लिया ए बी, वी वांट टू मेजर दिस आर्क लेंथ, तो एज इट्स अ कर्व वी कैन नॉट मेजर इट यूजिंग अ फुट रूलर और अ स्केल, कर्व है इसके लिए, तो इस आर्क लेंथ को मेजर करना तो क्या करें, तो याद करो, टू मेजर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी वी हैव द फॉर्मूला आर इनटू थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क at the center of the circle, where theta is the angle subtended by arc at the center of the circle, ये थीटा हो गया। हाँ, तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड। खास ध्यान रखें, ओनली कंडीशन ये एंगल रेडियन में होना चाहिए, एंगल डिग्री में नहीं लेना है, इसको रेडियन में लेना है। कैसे लेने को हम लोग बाद में सीखते हैं, अभी फिलहाल ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट जो हमने 9th या 10th में पढ़ा हुआ है इसे यहाँ अप्लाई करते हैं। ये हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस एंड ये हो गया आर्क। तो आर्क लेंथ बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डी इनटू एंगल सबटेंडेड थीटा। हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस डी, तो डिस्टेंस डी इज गिवन एज रेडियस ऑफ व्हाट अपॉन थीटा। खास ध्यान रखें, इस फॉर्मूला में ओनली कंडीशन इज थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना कंपलसरी है।
अब यहाँ पे अगर देखें तो ये पैरेलक्स एंगल एंड पैरेलक्स मतलब क्या, द नेम इज वेरी सजेस्टिव. सी, line joining both the centers, यानी center of planet and center of what is called the axis. एंड ये दो लाइनें जो बनी है वो ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्सिस होंगी. तो मतलब कहाँ से एंगल बना रही है ना. अरे द डिस्टेंस वेरी लार्ज, द डिस्टेंस एक्चुअली वेरी लार्ज. इसलिए यहाँ पर देखें लोकल अर्थ पे तो 1 2 3 लाइनें पैरेलल लगेगी एंड इससे इसको बोलते हैं पैरेलक्स मेथड. 2 लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस को शॉर्ट फॉर्म में पैरेलक्स बोला हुआ है. ये पैरेलक्स वाला मेथड हो गया, एंगल को पैरेलक्स एंगल नाम दे दिया. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग डिस्टेंस. अब तुम बोलोगे सर अर्थ के दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट मतलब नॉर्थ पोल ने साउथ पोल पे जाने का, सर बहुत ठंडी होती है वहां तो हम नहीं जाएंगे. अरे ऐसा नहीं है यार. व्हाट यू आर सेड इज एनी टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन अर्थ डजंट मीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ओनली. आप अगर अहमदाबाद में हैं तो सर्कल बना लीजिए अर्थ का, दूसरी तरफ आप कहीं साउथ अमेरिका में होंगे, साउथ अमेरिका में होंगे किसी सिटी में, तो वो आपका डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट हो गया. यानी अर्थ पे कोई भी दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ले सकते हैं. तो इसको अगर इक्वेटर मान लो तो इक्वेटर पे 2 पॉइंट ले लो, डजंट मैटर. एंड सर ये डायमीटर का क्या, तो डायमीटर ऑफ अर्थ इज ट्वाइस इट्स रेडियस एंड रेडियस ऑफ अर्थ यू नो इट्स एन एस्टिमेटेड वैल्यू 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. किलोमीटर पे 3 मिनट और 3 मिनट यहाँ पे 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, दैट्स अप्रॉक्सीमेट रेडियस ऑफ अर्थ. उसका डबल कर दो तो डायमीटर ऑफ अर्थ आ गया. ये तो फिक्स वैल्यू है, तो बी तो फिक्स है. थीटा एंगल फाइंड कर लो एंड आपको डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट मिल जाएगा. तो एक मेथड हो गया पैरेलक्स मेथड का, यूज टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ. अब इसी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेकंड मेथड विल टेक इज टू फाइंड साइज ऑफ अ प्लैनेट. प्लैनेट की साइज फाइंड करनी है. प्लैनेट की साइज मतलब क्या, डायमीटर ऑफ प्लैनेट. साइज मींस डायमीटर. वो कैसे करेंगे, सपोज ये प्लैनेट है. अच्छा थोड़ा मोटा हो गया प्लैनेट, हाँ क्योंकि अर्थ ये रहा ना, ये अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस हो गया. हम लोग यहाँ पे खड़े हैं एंड ये प्लैनेट की साइज यानी डायमीटर ढूंढना है. सपोज प्लैनेट का डायमीटर को डी बोल दिया है. फिर वही कलाकार, वही कामकाज. प्लैनेट के 2 डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट्स यानी 2 एंड्स को मेजर करेंगे. एंगल सपोज ये अल्फा मिला, बराबर है, ये एंगल अल्फा मिला हमको, ये एंगल को हमने अल्फा बोल दिया. अब हम यहाँ खड़े खड़े, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हुआ ये तो हमें मालूम है, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम अर्थ कैपिटल डी. तो फिर वो आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला आ गया, आर्क लेंथ रेडियस एंगल सबटेंडेड. तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल डी इनटू अल्फा, प्रोवाइडेड अल्फा शुड बी इन रेडियन. कंडीशन वही है खाली, अल्फा शुड बी इन रेडियन. यानी कि डी को, ये डी कहाँ से आया बोले आगे फॉर्मूला में फाइंड कर लिया हमने ऑलरेडी. तो ये स्मॉल डी क्या हो गया, डायमीटर ऑफ द प्लैनेट. तो ये अल्फा को क्या बोलेंगे, डायमीटर इन टर्म्स ऑफ एंगल. इट इज अल्फा इज डायमीटर इन टर्म्स ऑफ एंगल एंड दैट्स कॉल्ड एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट. इट्स कॉल्ड एंगुलर डायमीटर. डायमीटर इन टर्म्स ऑफ एंगल तो एंगुलर डायमीटर. अब तुम बोलोगे सर ये ऐसे एंगल कैसे मेजर करने का, तो देखिए उधर ऊपर प्लैनेट दिख रहा है, ये अपने एक आपका व्यू पॉइंट, व्यू लाइन, एक एंड एक साइड की प्लैनेट के. फिर यू हाथ घुमाओ, एक एंड से दूसरे एंड पे घुमाओगे, देखो हाथ यहाँ से घूम रहा है एंड दैट इज एंगल यू टू मेजर. एक एंड से दूसरे एंड आप अगर देखेंगे कुछ नहीं तो बिस्तर में लेटे लेटे पंखे का एक एंड ले लो और दूसरा एंड ले लो, देखो हाथ घूमेगा तो एंगल का पता लग जाएगा, दैट इज एंगुलर डायमीटर. ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ पैरेलक्स यूज्ड टू फाइंड साइज ऑफ अ प्लैनेट. दोनों फॉर्मूला, अरे यार ये तो सबसे पहली फॉर्मूला हुई इस चैप्टर की, सबसे पहले फॉर्मूला ही हमारे पास. दोनों फॉर्मूला में एंगल को यूज किया हुआ है थीटा एंड अल्फा. ये एंगल को स्ट्रिक्टली रेडियन में रखना है, दैट इज द ओनली कंडीशन हियर. The angle should be in radian while calculating the values. So that is how we measure. We use parallax method to find large distances. एक तो distance of planet from Earth and secondly size of a planet. That's